Good morning, students. Welcome to the e-classes. Children, today I will discuss a very important grammar topic with you, that is tenses. Before starting this topic, I would like to tell you that tense is the form of the verb which shows the time and the state of an action and event. यानी time show करते हैं tenses. Children, tenses are of three types. Three types के tenses होते हैं: past tense, present tense, future tense. जो टाइम हमारा जा चुका होता है दैट इज पास्ट टेंस, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है दैट इज प्रेजेंट टेंस, एंड जो हमारा आने वाला कल है दैट इज फ्यूचर टेंस. चिल्ड्रन, ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स: इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. Children, it means if we are studying past tense, it has four parts: simple past tense, or we can say past indefinite tense, past continuous or past progressive tense, past perfect tense or past perfect continuous tense. In the same way, present tense, simple present or present indefinite tense, present continuous or present progressive tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. And the third one is future tense. In the same way, the future tense also has four forms: simple future or future indefinite tense, future continuous or progressive tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Children, each form has four types. It means indefinite tense हो, continuous हो, perfect हो और perfect continuous हो, इन सब के अलग अलग फोर टाइप्स भी होते हैं. मीन्स एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. नाउ firstly we will discuss simple present tense, or we can say present indefinite tense. Children, firstly I will discuss simple present tense or present indefinite tense with you. इसको हम simple present tense या फिर present indefinite tense कुछ भी बोल सकते हैं. Okay? Now, simple present tense is used to express habitual actions, universal truth और daily routines. It means इसके identification देखें तो ये टेंस जो होता है हमारे हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स और डेली रूटीन को शो करता है. कैसे? लेट्स सी थ्रू एग्जांपल. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. इट इज डेली रूटीन. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. जो धरती होती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है. शी लाइक्स फ्रूट्स. माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली. इट इज डेली रूटीन. सो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली रूटीन्स. नाउ अब सेंटेंस बनाएंगे कैसे? सेंटेंस बनाने के लिए इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जो रूट वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं. लेकिन बच्चों इसका भी एक रूल होता है. वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का एक नाम, इसको हम सिंगुलर लेते हैं और इसके साथ हम वर्ब में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस को यूज करेंगे. एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे. बिकॉज ही इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर es with the first form of the verb, that is go. goes लिखा हमने यहाँ पर. But if our subject is plural, I, we, you, they, या फिर एक से ज्यादा दो नाम या फिर कितने भी नाम हो, वो सबको हम प्लूरल में रखते हैं और वहां पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. दे गो टू स्कूल एवरी डे. ओके, हमेशा इस चीज को इस टेंस में याद रखना है. इस टेंस में हम कभी भी कोई इज आर एम कुछ नहीं लगाएंगे. ओनली रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब S or ES with the singular subject and root form of the verb with plural subject. Now, negative sentence. Students, in negative sentence, we use does not with singular subject and we use do not with plural subject. Example, he does not go to school every day. Because he is singular, that's why we are using here does not. But in negative sentence, we use only root form of the verb, that is go. And in plural subject we use do not. They do not go to school every day.
In negative sentence, we use only root form of the verb and we use does not, do not according to the subject. Now, interrogative sentence. We use does or do in the beginning of the sentence. Does he go to school every day? Do they go to school every day? We use do here because they is plural subject. That's why we are using do. Okay, students? Children, now interrogative negative. It means interrogative negative में जो हमारा सेंटेंस है उसमें नोट को हम यूज करते हैं. Does he not go to school every day? Okay, students, it is simple present tense or we can say it present indefinite tense. Children, now we will discuss present continuous tense or we can say it present progressive tense. What is the identification of this tense? Present continuous tense is used to express an action that is going on at the time of speaking. जब हम कोई चीज बोलेंगे तभी हम उस वर्क को कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. देखो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ और ये कह भी रही हूँ आई एम टीचिंग यू. इट मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इफ यू आर ईटिंग फूड, दैट यू आर ईटिंग फूड. इट मीन्स यू आर ईटिंग फूड. और अगर मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो, एक्शन इज इन द प्रोग्रेस बिकॉज यू आर नाउ ईटिंग फूड. वट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस? Helping verb is rm plus first form of the verb plus ing. For example, you are reading a book. She is writing a poem. I am teaching you. You know, helping verb we use is with singular subject and we use are for plural subject and we use am for I के साथ हम am को use करते हैं. If we want to make negative sentence of present continuous tense, we use not with the helping verbs. Helping verbs are is, rm. For example, you are not reading a book. It is negative sentence. She is not writing a poem. Now, interrogative. In interrogative sentence, firstly, we have to write helping verbs. It means is, rm को हम beginning में रखते हैं sentence के. Example, are you reading a book? Is she writing a poem? And interrogative negative sentence. In these sentences, we use not. Are you not reading a book? Is she not writing a poem? It means ये sentence जो है प्रश्नवाचक तो है ही और साथ में ये नेगेटिव भी है. निषेधात्मक सेंटेंस हम इनको बोलते हैं. Okay, students, it is present continuous tense. Children, now it is present perfect tense. What is the identification of this tense? How can we identify this tense? Present perfect tense is used to express an action that has just come to an end. It means जो अभी अभी खत्म होता है sentence, हम उसको present perfect tense बोलते हैं. For example, I have eaten the food. अगर हम इसको हिंदी में देखें sentence को, then children, I have eaten the food. मैं खाना खा चुका हूँ. इट मीन्स जो एक्शन है ना वो अभी अभी हमारा जो वर्क है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. नाउ हाउ कैन वी फॉर्म द सेंटेंसेस? इन दिस टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. वी यूज हैज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज हैव विथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, सपोज गो, वेंट, गोन. गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, बट इफ वी आर यूजिंग these forms in present perfect tense, we use third form, that is gone. Okay, जैसे complete, completed, completed. Then we use third form of the verb plus object. Object is not a compulsory part of the subject. ये हो भी सकता है और नहीं भी. Now, you have completed your work. हमने जब have को यूज किया है present perfect tense के लिए as a helping verb, तब हमने यहाँ पे verb की third form यूज की है, completed. In the next sentence, he has written an essay. Written third form है, first form होती है हमारी write, second होती है wrote और third होती है written. लेकिन हम ये जो verb यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं present perfect tense के लिए और present perfect tense में हमेशा third form यूज होती है. That's why we are using here written. He has written an essay. वो एक essay लिख चुका है.
नाउ नेगेटिव सेंटेंस, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। सिंपल हमें नोट ऐड करना है इस सेंटेंस के अंदर और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ही हैज नॉट रिटन एन एसे। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा बिगिनिंग में जो होती है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसी को ही बिगिनिंग में रखेंगे। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैज ही रिटन एन एसे। ओके स्टूडेंट, नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, हैज ही नॉट रिटन एन एसे। चिल्ड्रन, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है इस टेंस की। नाउ चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन होगी इस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express an action which began in the past and is still continuing. It means हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो चुका है बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM। कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन। हैज और हैव के साथ हमें बीन को यूज करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी एड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी। हेल्पिंग वर्ब रहेगी इस टेंस की हैज और हैव प्लस बीन, हैज बीन और हैव बीन। वी शुड यूज हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी शुड यूज हैव बीन प्लस विद प्लूरल सब्जेक्ट। हाउ कैन वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस? सिंपल, वी एड नॉट। He has not been sleeping since 9 PM. And in interrogative sentence, firstly we have to write has or have. Has he been sleeping since 9 PM? Children, इस टेंस के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम since और for को यूज करते हैं, इस टेंस में टाइम जरूर देते हैं। तो अगर हमारा डेफिनेट टाइम होता है, बिकॉज इट इज डेफिनेट टाइम 9 PM, तो हमने यहाँ पर since को यूज किया है। अगर यहाँ पे होता he has been sleeping for 2 hours, we don't know कौन से वो 2 hours है, that's why we use for। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करेंगे since और इंडेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करेंगे for। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैज he not been sleeping since 9 PM। चिल्ड्रन, एक बात बहुत ध्यान रखना, हमें हेल्पिंग वर्ब हैज को ही बाहर निकालना है और बीन को हम अपनी जगह पर ही रखेंगे। यानी फर्स्टली वी यूज हैज, देन एज इट इज सेंटेंस हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM। चिल्ड्रन, नाउ आवर प्रेजेंट टेंस इज कंप्लीट।